آپ نے بچپن سے بار بار سنے لیکن آخر یہ ساری خلافتیں آئی کہاں سے اور موسٹ امپورٹنٹ آخر ان ساری خلافتوں میں فرق کیا تھا؟ السلام علیکم everyone, this is Miss Saika. Welcome to my channel Saika's Reaction. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں یوٹیوب پہ نیو ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ اور سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو جس ویڈیو پر آج میں ریئیکٹ کرنے جا رہی ہوں اس کا ٹائٹل ہے آل خلافات آف اسلام، جو کہ دا کوہستانی چینل سے لی گئی ہے، اور اس میں تمام خلافات کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ کہ اسلام کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. دنیا میں مسلمانوں کی 4 بڑی خلافتیں رہی ہیں: خلافت راشدہ، امیہ خلافت، عباسی خلافت اور عثمانیہ خلافت. یہ نام آپ نے بچپن سے بار بار سنے لیکن آخر یہ ساری خلافتیں آئی کہاں سے اور موسٹ امپورٹنٹ آخر ان ساری خلافتوں میں فرق کیا تھا؟ اس پوری ہسٹری کو سمپل ورڈز میں سمجھتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صرف 10 سالوں کے اندر یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی پہلی خلافت شروع ہوئی، خلافت راشدہ، جنہوں نے صرف 30 سال میں رومن اور پرشین امپائر کو کرش کر کے دنیا کا یہ سارا علاقہ بھی فتح کر لیا. پہلی بار مسلمان ایک چھوٹے سے مدینہ کے شہر سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنے، اور مسلمانوں نے انڈیا سے یورپ کے سمندروں تک یہ سارا علاقہ فتح کر لیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 30 سال بعد خلافت راشدہ دنیا سے ختم کر دی گئی. خلافت راشدہ میں خلیفہ ہمیشہ مسلمانوں کے مشورے اور ووٹنگ سے خلیفہ بنتا تھا. مطلب مسلمان خود اپنی پسند سے خلیفہ کو چوز کرتے تھے. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کی مرضی سے ہی خلیفہ بنے تھے، جو ایک بہت ہی زبردست بات تھی. لیکن صرف 30 سال کے بعد یہ سسٹم دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. مسلمانوں کے آخری خلیفہ جنہیں مسلمانوں نے خود اپنی مرضی سے خلیفہ بنایا تھا وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا شہزادہ کہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک دنیا میں بالکل پیور خلافت تھی، جسے آج خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، مطلب سیدھے راستے پر چلنے والی خلافت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک رہے گی. تو لیٹس کاؤنٹ: 2 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، 10 سال حضرت عمر کی خلافت، 12 سال حضرت عثمان کی خلافت، 5.5 سال حضرت علی کی خلافت اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت، جو بالکل ایگزیکٹلی 30 سال بنتے ہیں. اور پتہ ہے عجیب بات کیا ہے؟ حضرت حسن دنیا میں مسلمانوں کے وہ آخری خلیفہ تھے جنہیں مسلمانوں نے خود اپنا خلیفہ بنایا تھا. اور حضرت حسن کے بعد آج تک عرب دنیا میں کوئی بھی لیڈر مسلمانوں کی مرضی سے نہیں آیا. آج تک مسلمانوں کا ہر لیڈر صرف اپنی طاقت اور پاور کی وجہ سے لیڈر بنا، اور عرب دنیا میں آج تک خاندان کی وجہ سے لیڈرز بنتے ہیں. جیسے مسلمانوں نے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا، اس وقت مسلمانوں کی آپس میں سول وار چل رہی تھی، اور جنگ صفین کے بعد اب مسلمانوں کی آپس میں ایک اور بہت بڑی جنگ کا خطرہ تھا. حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ اسی طرح آپس میں لڑیں، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے روکنے کے لیے حضرت حسن نے اپنی خلافت چھوڑ دی، اور یہاں سے دنیا میں ایک نئی خلافت بنی، امیہ خلافت. حضرت حسن کے بعد دنیا میں جو بھی خلافت ہے، امیہ، عباسی، عثمانیہ، ان سب کو اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ خلافت عامہ کہا جاتا ہے، مطلب عام خلافت.
एक जनरल खिलाफत जो मुसलमानों के आम लीडर थे। सही। हजरत हसन के बाद दुनिया में तकरीबन कोई 120 खलीफा रहे हैं, जिनमें कुछ बहुत जबरदस्त खलीफा थे, जैसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान तारीफ करते An हैं। important figure in Islamic history is Umar ibn Abdul Aziz, who is from Khulafa al-Rashidin, even though he's disconnected by time. और कुछ बहुत ही बेकार खलीफा थे, जैसे कि यजीद, जिससे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नफरत करते हैं। ऐसा ही है। हमें मोहब्बत नहीं। जालिम हुक्मरान और बादशाह डिक्लेयर करते हैं। खैर, हजरत हसन के बाद दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत, और अगले ऑलमोस्ट 100 साल तक उमैया खिलाफत ही मुसलमानों पर हुकूमत करती रही। उमैया खिलाफत में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई और कुछ चीजें बहुत बुरी। अच्छी चीज ये थी कि खिलाफत का साइज और भी ज्यादा बढ़ने लगा, यहाँ तक कि मुसलमान पहली बार यूरोप के अंदर घुसे और स्पेन को फतह कर लिया। और दूसरी तरफ मुसलमानों ने हिंदुस्तान के इलाके सिंध को भी फतह किया। और इस पूरे दौर में कोई भी दूसरी एम्पायर मुसलमानों के सामने अपना सर नहीं उठा सकी। उमैया खिलाफत के सबसे बेस्ट खलीफा को आज दुनिया का हर मुसलमान जानता है, और उनका नाम था खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज। लेकिन उमैया खिलाफत के तकरीबन 100 सालों में कुछ बुरी चीजें भी हुई। सबसे बुरा वाकया क्या? जो इस खिलाफत में हुआ, वो था ऑफ कोर्स करबला, वाक़ई करबला। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली अहले बैत को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। और आगे जाकर उमैया खिलाफत के टूटने की सबसे बड़ी वजहों में से एक यही करबला का वाकया था, क्योंकि इसी वाकये की वजह से मुसलमान कभी भी बनु उमैया को माफ नहीं कर सके। दूसरी बुरी चीज उमैया खिलाफत में ये थी कि इससे पहले खिलाफत राशिदा में मुसलमानों का खलीफा हमेशा मुसलमानों की मर्जी से आता था और मुसलमान खुद अपना खलीफा चूज करते थे। लेकिन उमैया खिलाफत ने ये निजाम बदल दिया। उमैया खिलाफत में सिर्फ एक ही खानदान के लोग खलीफा बन सकते थे। अगर कोई और मुसलमान जितना भी नेक और टैलेंटेड हो, वो खलीफा नहीं बन सकता। खलीफा सिर्फ बनु उमैया खानदान से ही बन सकता था। और तीसरी बुरी बात यह थी कि उमैया खिलाफत एक बहुत ही अरबों की खिलाफत थी। मतलब इतनी बड़ी खिलाफत होने के बाद भी जहां दुनिया की बहुत सारी कौमें रहती थी, उमैया खिलाफत सिर्फ अरबों को ही इंपॉर्टेंस देती थी। अरबों के पास ही सारी बड़ी जॉब्स थी, अरब ही फौज के जनरल्स थे। और इवन बनु उमैया के शहजादों के बारे में यहाँ तक लिखा गया कि वो किसी भी शहर में आम लोगों के साथ नहीं, बल्कि अपने अलग बड़े बड़े महलों में रहते थे, जिस तरह आज सऊदी और यूएई के शहजादे होते हैं। जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यहाँ रहने वाली बाकी कौमें बनु उमैया को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन्हीं चीजों की वजह से बनु उमैया कमजोर होने लगे। और उमैया खिलाफत का सबसे बुरा खलीफा था ऑफ कोर्स यजीद। बनु उमैया खानदान में एक ऐसा खलीफा आया था जिसने इस खिलाफत को ठीक करने की बहुत कोशिश की थी, और इस खिलाफत में रहने वाले बाकी कौमों को भी राइट्स दिए थे, और उनका नाम था खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। लेकिन सिर्फ 2-2.5 साल की छोटी सी खिलाफत के बाद खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज इस दुनिया से चले गए। और कुछ स्कॉलर्स तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें उन्हीं के खानदान वालों ने जहर देकर शहीद किया, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज सिर्फ 39 साल की एज में फौत हुए थे। आखिर इन्हीं सारी चीजों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग बनु उमैया खिलाफत के खिलाफ होने लगे। मैं इन बादशाहों को नहीं मानूंगा। और ऑलमोस्ट 100 साल के बाद एक दूसरे खानदान ने बनु उमैया खानदान के खिलाफ हर तरफ बगावत करना शुरू किया, और इस खानदान का नाम था अब्बासी खानदान। अब्बासी खानदान तेजी से आगे बढ़ रहा था, और आखिर एक बहुत बड़ी जंग के बाद अब्बासी खानदान ने उमैया खलीफा को बुरी तरह हरा दिया। उमैया खलीफा अब्बासियों से अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन आखिर अब्बासियों ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि अब्बासियों ने खलीफा की जबान काटकर उसे बिल्लियों को खिला दिया। इसके बाद अब्बासी खानदान ने बनु उमैया खानदान के एक एक आदमी को पकड़कर मारना शुरू किया, सिवाय एक शहजादे के जो किसी तरह अब्बासियों से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए।
اور بھاگتے بھاگتے یہ شہزادہ اسپین پہنچا اور اسپین میں اس شہزادے نے اپنی ایک نئی ایمپائر بنائی. لیکن اسپین میں کوئی خلافت نہیں تھی, بس ایک مسلمانوں کی ایمپائر تھی. لیکن اس اسپین کو یاد رکھے, آگے اس کا نام دوبارہ آنے والا ہے. تو اس طرح اس سب سے 100 سال پہلے جو خلافت امیہ خاندان نے اپنی طاقت سے لی تھی, اب ایک اور خاندان عباسی خاندان نے یہ خلافت ان سے چھین لی. عباسی خاندان. اور یہاں سے مسلمانوں میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی, عباسی خلافت. عباسی خلافت. اور اگلے کئی 100 سال تک عباسی خلافت مسلمانوں پر راج کرتی رہی. عباسی خلافت میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی اور کچھ چیزیں بہت بری. عباسی خلافت کی اچھی باتیں یہ تھی کہ عباسی خلیفہ علم اور نالج کے پیچھے بالکل پاگل تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے کیپٹل بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی, بیت الحکمہ, the house of wisdom. اور یہیں سے مسلمان دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بنے. اسی لیے آج عباسی خلافت کے دور کو ہی the golden age of اسلام کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ عباسی خلافت بنو امیہ کے بالکل اپوزٹ تھی. مطلب عباسی صرف عربوں کو ہی امپورٹنس نہیں دیتے تھے, بلکہ دنیا میں جو بھی ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا تھا عباسی خلافت اسے سٹیزن شپ دیتی تھی اور اسے سپورٹ بھی کرتی تھی, جس طرح آج یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے. اور عباسی خلافت کی ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ اس خلافت میں اسلام کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں, جیسے کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, بلکہ حدیث کی ساری بڑی کتابیں ہی عباسی خلافت میں لکھی گئیں. اور عباسی خلافت میں مسلمانوں کے پاس جتنا پیسہ اور طاقت تھی وہ مسلمانوں کو دوبارہ اس کے بعد کبھی نہیں مل سکی. عباسی خلافت کے سب سے بیسٹ خلیفہ کو آج تک پوری دنیا کے مسلمان یاد کرتے ہیں, اور ان کا نام تھا خلیفہ ہارون الرشید. لیکن عباسی خلافت کی کچھ بری چیزیں یہ تھی, عباسی خلافت میں بھی بالکل بنو امیہ کی طرح ایک ہی خاندان کا بندہ خلیفہ بن سکتا تھا, چاہے کوئی اور جتنا بھی ٹیلنٹڈ اور نیک کیوں نہ ہو, خلیفہ صرف عباسی خاندان کا بندہ ہی بن سکتا تھا. مسلمان اپنی پسند سے خلیفہ چوز نہیں کر سکتے تھے. عباسی خلافت کی دوسری بری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بات زبردستی منوانے کے لیے اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز کو شہید کروایا. جیسے کہ ایک عباسی خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو زہر دے کر شہید کیا تھا. امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے لگوائے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گئے, اور امام مالک کو بھی عباسی خلیفاؤں نے ٹارچر کیا. اور صرف یہی نہیں, عباسیوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا. تیسری بات عباسیوں کی بری یہ تھی کہ عباسی خلافت مسلمانوں کی ایمپائر کو اور آگے نہیں بڑھا سکے. مطلب عباسیوں کو اتنی بڑی خلافت ملی تھی جس کے بعد آنے والے وقتوں میں یہی خلافت اندر سے ہی ٹوٹتی رہی. آخر 200 سال کے بعد عباسی خلافت کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے, ہر طرف عباسیوں کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی اور آخر عباسی خلافت ٹوٹ گئی. اور یہاں سے مسلمانوں میں ایک نیا خاندان سامنے آیا, فاطمی خاندان. فاطمی خاندان جنہوں نے اس سارے علاقے پر اپنی ایک نئی خلافت بنائی, فاطمی خلافت. مطلب پہلی بار دنیا میں ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ایک ہی ٹائم پر 2 خلیفہ تھے. عباسی سنی خلیفہ تھے اور فاطمی اسماعیلی شیعہ خلیفہ. برویٹ, کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ان دونوں خلیفاؤں کو دیکھ کر اسپین کے مسلمان بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ سب خلیفہ بن سکتے ہیں تو میں یہاں کیوں ایسے بیٹھا ہوں. تو اچانک ایک دن اسپین کے بادشاہ نے بھی اعلان کیا کہ آج کے بعد میں بھی ایک خلیفہ ہوں. آج سے میں بھی ایک خلیفہ ہوں. اور اس نے حکم دیا کہ کل سے اگر کسی نے بھی مجھے خلیفہ نہیں بلایا میں اسے مار ڈالوں گا. تو اب دنیا میں ایک ایسا عجیب ٹائم تھا کہ ایک ہی ٹائم پر دنیا میں 3 خلیفہ تھے. عباسی خلیفہ, فاطمی خلیفہ اور اندرس کا خلیفہ. لیکن اسپین کا خلیفہ بہت ہی چھوٹا سا خلیفہ تھا اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک بڑا خلیفہ بن سکے. اسی لیے کچھ ہی عرصے بعد اسپین کی خلافت ختم ہو گئی, جس کے بعد دنیا میں 2 خلیفہ باقی رہے, فاطمی اور عباسی خلیفہ. اور ان دونوں کی آپس میں بہت خطرناک ریس چل رہی ہوتی تھی اور ہر طرف بحثیں ہوتی تھی کہ ان 2 خلیفہ میں سے کون سا خلیفہ باقی رہے گا. لیکن آخر کچھ ہی عرصے بعد یہ ساری بحثیں ختم ہو گئی کیونکہ فاطمی خلافت کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے اور آخر ایک آدمی نے آ کر
इस खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस आदमी ने फातमी खिलाफत के अंदर खड़े होकर ऐलान किया कि आज के बाद हम फातमी खलीफा को नहीं बल्कि अब्बासी खलीफा को भी अपना असल खलीफा मानते हैं। और इस आदमी को आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो अब सलाहुद्दीन की वजह से अगेन दुनिया में एक ही खलीफा बाकी रहा, अब्बासी खलीफा। लेकिन अब यहां वो पुराने हालात नहीं थे और अब्बासी खिलाफत वो ग्रेट खिलाफत नहीं थी, बल्कि अब्बासी खिलाफत अब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी थी। मतलब खलीफा सिर्फ बगदाद में बैठा हुआ होता था और उसके पास ज्यादा कोई ताकत नहीं थी। तो अब जब मुसलमानों का कोई भी ताकतवर स्ट्रॉन्ग खलीफा नहीं था, इस बात का फायदा खिलाफत से बहुत दूर मंगोलिया के एक आदमी ने उठाया, जो अब मुसलमानों के साथ वो करने वाला था जिसका अब तक मुसलमानों ने तारीख में सोचा भी नहीं था। क्योंकि इस आदमी का नाम था तैमूजिन और या चंगेज खान। चंगेज खान ने बहुत तेजी से एक के बाद एक मुसलमान इलाके को तबाह करना शुरू किया और आखिर इसी चंगेज खान का पोता हलाकू खान मुसलमानों को क्रश करते करते अब्बासी खिलाफत के कैपिटल बगदाद पहुंचे और बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया। और इस बात का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान छोटी आंखों वाले तुर्कों से नहीं लड़ते, जिनके चेहरे चमड़े की तरह फ्लैट होंगे और जूते बालों से बने होंगे। और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच साबित हो गई थी क्योंकि मंगोलों की फौज बगदाद की गेट के बाहर खड़ी थी और शहर के अंदर अब्बासी खिलाफत का आखिरी खलीफा बैठा हुआ था, खलीफा अल-मोतसिम। हलाकू खान ने खलीफा की तरफ एक बहुत ही बेइज्जती वाला लेटर भेजा जिसमें कुछ इस तरह लिखा था कि ओ खलीफा, अच्छे बच्चे बनो और मेरे सामने सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे शहर को आग लगा दूं। लेकिन ऑफ कोर्स खलीफा ने सरेंडर नहीं किया। मैं किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करूंगा। जिसके बाद मंगोलों की फौज बगदाद के अंदर घुसी और बगदाद की एक एक चीज को आग लगाने लगी। लाखों मुसलमानों को शहीद किया और बगदाद की हर किताब को बगदाद के दरिया में फेंक दिया। लेकिन हलाकू खान यहां रुका नहीं, बल्कि उसकी फौज अब्बासी खलीफा को घसीटकर हलाकू खान के सामने लाई और फिर इस आखिरी खलीफा को एक कारपेट के अंदर रोल कर खलीफा के ऊपर से घोड़े दौड़ाए और इस तरह आखिरी अब्बासी खलीफा को शहीद कर दिया गया। यहां एक पॉइंट नोट करना लाजमी है, ये वाला खलीफा अल-मोतसिम मुसलमानों का पहला और आखिरी खलीफा था जिसे एक नॉन मुस्लिम बादशाह ने शहीद किया था। और इस तरह आखिर 500 साल के बाद अब्बासी खिलाफत खत्म हो। अब सोचें, इससे कुछ साल पहले दुनिया में एक ही टाइम पर 3 खलीफा थे और अब हालात ऐसे थे कि पूरी दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था। लेकिन वेट, यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हलाकू खान बगदाद को तबाह कर रहा था, अब्बासी खानदान का एक शहजादा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया और फिर अरब के गर्म डेजर्ट में चल चल कर किसी तरह इजिप्ट पहुंचे, जहां इजिप्ट के लोगों ने खिलाफत खत्म होने के 6 साल बाद इस आदमी को मुसलमानों का नया खलीफा बनाया। और इस तरह एक बार फिर अब्बासी खिलाफत शुरू हुई। लेकिन ये वो पुरानी खिलाफत नहीं थी, ये खलीफा बस एक आम आदमी था जिसे खलीफा का टाइटल दिया गया था और एक घर और कुछ नौकर दिए गए थे। इसके अलावा इस खलीफा के पास कोई भी ताकत नहीं थी। जो ममलूक बादशाह कहता था खलीफा को वही करना होता था। मतलब खलीफा का जो ये टाइटल था, ये बहुत ही एक कमजोर नाम बन चुका था और दुनिया में इस टाइटल की कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन बहुत जल्द हालात बदलने वाले थे, क्योंकि इस सबसे बहुत दूर तुर्की में एक छोटा सा कबीला आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ा रहा था। और इस छोटे से कबीले के लीडर का नाम था सुल्तान उस्मान खान। और इसी कबीले ने आगे जाकर
खिलाफत के टाइटल को दोबारा इज्जत दी और यही कबीला आखिर मुसलमानों की आखिरी खिलाफत बनी जिसका नाम था उस्मानिया खिलाफत। आहिस्ता आहिस्ता उस्मानिया सल्तनत तुर्की में फैलने लगी, लेकिन उस्मानिया सल्तनत पहले ही दिन से कोई खिलाफत नहीं थी, बल्कि शुरू में ये सिर्फ एक सल्तनत, एक एम्पायर थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये सल्तनत बढ़ने लगी, उस्मानिया सल्तनत मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी एम्पायर बनी और उस्मानिया सल्तनत ने बड़ी बड़ी जंगों के बाद दुनिया का ये सारा इलाका फतह कर लिया। इवन मक्का और मदीना भी उस्मानिया सल्तनत के कंट्रोल में आए। लेकिन उस्मानिया सल्तनत एक खिलाफत तब बनी जब सुल्तान सलीम ने इजिप्ट को फतह किया और वहां सुल्तान सलीम को एक बंदा मिला, उसी अब्बासी खलीफा का पोता जो इससे बहुत साल पहले हलाकू खान से भागकर इजिप्ट आया था। तब से लेकर अब तक अब्बासी खलीफा इजिप्ट में ही रहते थे, लेकिन ये सिर्फ नाम के खलीफा थे और ताकत इनके पास बिल्कुल जीरो थी। सुल्तान सलीम को जब इसका पता चला, वो सीधा इस खलीफा को अपने साथ वापस अपने कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल लेकर गए और वहां इस अब्बासी खलीफा को हुक्म दिया कि अपनी खिलाफत छोड़ दो और मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बना। तो ऑफ कोर्स अब्बासी खलीफा और कर भी क्या सकता था, उसने अपनी खिलाफत छोड़ दी और उस्मानिया सुल्तान को मुसलमानों का खलीफा डिक्लेयर किया। और इस तरह हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत अरबों से निकलकर तुर्क सुल्तान उस्मानी सुल्तान के पास आई, क्योंकि उस्मानिया से पहले हर खिलाफत एक अरब खिलाफत थी। और यहां से उस्मानिया सल्तनत का नाम हमेशा के लिए बदल गया और उसको एक नया नाम मिला, उस्मानिया खिलाफत। अब अगर थोड़ा गौर से देखा जाए, मुसलमानों को इस बात से कोई मसला नहीं था कि खिलाफत अरबों को मिले या तुर्कों को, खलीफा बस मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आगे जाकर कुछ लोगों ने अरबों के दिल में ये रेसिज्म डाला कि खलीफा सिर्फ और सिर्फ एक अरब ही हो सकता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, उस्मानिया सल्तनत अब एक खिलाफत बन चुकी थी और इस खिलाफत में भी बाकियों की तरह कुछ अच्छी चीजें थी और कुछ बहुत बुरी चीजें। उस्मानिया खिलाफत की सबसे अच्छी बात यह थी कि खलीफा का ये टाइटल हलाकू खान की तबाही के बाद सिर्फ एक टाइटल था जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी और खलीफा के पास कोई पावर नहीं होती थी। लेकिन उस्मानिया ने आकर दोबारा इस खिलाफत के नाम को इज्जत दी। मतलब उस्मानिया खलीफा ही पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता था। उस्मानिया खिलाफत की दूसरी अच्छी बात यह थी कि इनसे पहले कोई भी खिलाफत यूरोप के सेंटर तक नहीं पहुंची, लेकिन उस्मानिया खिलाफत मुसलमानों से ज्यादा यूरोप के इलाके फतह करती थी और उन्होंने पहली बार यूरोप के ये सारे इलाके भी फतह किए थे। और आखिर सबसे बड़ी बात उस्मानिया खिलाफत की ये थी कि आखिरी वक्त में बहुत कमजोर होने के बाद भी उन्होंने फलस्तीन को आखिरी टाइम तक सरेंडर नहीं किया। उस्मानिया सल्तनत का सबसे बड़ा और ताकतवर बादशाह था सुल्तान सुलेमान, जिसे आज तक यूरोप में सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहा जाता है। लेकिन उस्मानिया में एक और खलीफा भी बहुत बहादुर आदमी था जिसका नाम मेंशन करना लाजमी था। उस्मानिया का आखिरी बड़ा सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद। लेकिन उस्मानिया खिलाफत में ऑफ कोर्स बुरी चीजें भी थी। पहली बुरी बात यह थी कि उस्मानिया खिलाफत ने एक अजीब सा कानून बनाया था कि जो भी उस्मानी शहजादा खलीफा बनेगा वो बादशाह बनते ही अपने सारे भाइयों को और उनके छोटे छोटे बेटों को मार डालेगा, चाहे उन भाइयों ने कोई गलती या बगावत की भी ना। इस कानून की वजह से एक उस्मानिया खलीफा ने अपने 19 भाइयों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला था। उस्मानिया खिलाफत की दूसरी बुरी बात यह थी कि इस खिलाफत के पहले और आखिरी खलीफा तो बहुत ताकतवर खलीफा थे, लेकिन बीच के कुछ खलीफा बहुत ही कमजोर लोग थे। कुछ शराबी थे, कुछ वुमनाइजर्स थे और कुछ तो बिल्कुल पागल ही थे। ये बीच के कुछ खलीफा सिर्फ अपनी अयाशियों में रहते थे और सारी खिलाफत इनकी बीवियां या माएं चलाती थी। इसीलिए एक पावरफुल खलीफा ना होने की वजह से उस्मानिया खिलाफत को बहुत नुकसान हुआ था। और आखिर में सबसे बुरा काम जो उस्मानिया खिलाफत ने किया था वो इतना बुरा काम था कि आज तक मुसलमान उसकी वजह से दुनिया से पीछे रह गए। और वो ये था कि उस्मानिया खिलाफत ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम कहा था। प्रिंटिंग प्रेस एक मशीन थी जो उस्मानिया खिलाफत के दौर में यूरोप में इजाद हुई
और ये इतनी खतरनाक मशीन थी कि इससे पहले एक आदमी एक दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस की मशीन से वही आदमी एक ही दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था, जो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन उस्मानिया खिलाफत के खलीफा और उलमा ने इस टेक्नोलॉजी को हराम कह दिया, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप में करोड़ों किताबें प्रिंट होने लगी और मुसलमान उसी तरह अपने हाथों से थोड़ी सी किताबें लिखते रहे। तो ऑफ कोर्स यूरोप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया और मुसलमान पीछे रह गए। उस्मानिया खिलाफत को आखिर 300 साल के बाद होश आया कि प्रिंटिंग प्रेस कोई हराम चीज नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। लेकिन अफसोस उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी है। यूरोप मुसलमानों से साइंस में 300 साल आगे निकल चुका था और इसी की वजह से आज तक मुसलमान यूरोप का मुकाबला नहीं कर पा रहे। अगेन ये बात याद रखें कि दुनिया में एक ही खिलाफत बिल्कुल प्योर खिलाफत थी और वो थी खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा। उसके बाद हर खिलाफत में कुछ अच्छे काम भी हुए और कुछ बहुत बुरे काम हुए। खैर, अब्बासी खिलाफत के बाद अब उस्मानिया मुसलमानों के खलीफा थे और ये उस्मानिया खिलाफत अगले 400 साल तक मुसलमानों की अकेली एक ही खिलाफत रही। लेकिन 400 साल के बाद अब खिलाफत पर उसका आखिरी दौर आने वाला है, क्योंकि 400 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग के शुरू होने का वक्त आ चुका है। वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानिया खिलाफत और जर्मनी साथ मिलकर उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे और उस्मानिया खिलाफत इस वर्ल्ड वॉर 1 में इतनी बहादुरी से लड़ी थी कि एक जंग में उस्मानिया खिलाफत ने ब्रिटिश एम्पायर की 5.5 लाख की फौज को बुरी तरह हरा दिया। आखिर उस्मानिया खिलाफत से तंग आकर ब्रिटिश एम्पायर ने उस्मानिया खिलाफत को तोड़ने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि उस्मानिया खिलाफत के अंदर ही रहने वाले मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। तो इस प्लान के लिए सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर अरबों के पास गए। खिलाफत सिर्फ तुम अरबों की होनी चाहिए और उनसे कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दुनिया के असल खलीफा तो तुम अरब थे और अब पिछले 400 साल से ये तुर्क खानदान खलीफा होने की एक्टिंग करके तुम पर राज कर रहे। अगर तुम अरब उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ हमारी मदद करोगे तो हम तुर्कों के इस उस्मानिया खिलाफत को खत्म करके तुम अरबों को दोबारा मुसलमानों का खलीफा बनाएंगे। और इस काम के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने एक अरब खलीफा भी ढूंढा, मक्का में रहने वाला एक स्कॉलर शरीफ हुसैन। इससे पहले अरबों के दिल में तुर्कों के खिलाफ कोई नफरत नहीं थी, लेकिन यहां पर ब्रिटिश एम्पायर ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अरबों के दिलों में ये रेसिज्म पैदा किया। जिस तरह आज भी मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए शिया सुन्नी वाले मसले को जिंदा किया जाता है। अच्छा, जो भी हो, आखिर अरबों ने उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ बगावत कर दी और ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया और बहुत कोशिश करने के बाद भी उस्मानिया खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई और हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो गई। जैसे ही उस्मानिया खिलाफत खत्म हुई, 700 साल के बाद मुसलमानों पर दोबारा एक ऐसा वक्त आया कि दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था। पिछली बार खिलाफत चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने खत्म की थी और अब खिलाफत ब्रिटिश एम्पायर ने खत्म कर दी थी। उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद अरबों ने ब्रिटिश से कहा कि अब वक्त आ चुका है, अपना वादा पूरा करो और हमें खलीफा बनाओ। लेकिन ये सुनकर ब्रिटिश एम्पायर हंसने लगे। कौन सी खिलाफत? किस चीज की खिलाफत? यहां पर अरबों को समझ आई कि उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है और उन्हें समझ आई कि असल में ब्रिटिश एम्पायर खिलाफत के नाम को ही हमेशा के लिए दुनिया से खत्म करना चाहती है ताकि दोबारा कोई भी लीडर दुनिया के मुसलमानों को यूनाइट ना कर सके और मुसलमान हमेशा के लिए आपस में डिवाइडेड रहे। इस आदमी को गौर से देखें, इसका नाम है हारून उस्मानोग्लू। आज अगर उस्मानिया खिलाफत जिंदा होती तो ये आदमी उस्मानिया खिलाफत का खलीफा होता, क्योंकि ये खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद का पोता है। तो इस तरह आज से 100 साल पहले वो खिलाफत
जो पिछले 1300 साल से दुनिया में कहीं ना कहीं चल रही थी, आज से 100 साल पहले खत्म कर दी गई। और आज 100 साल के बाद में खिलाफत का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये थी दुनिया की हर खिलाफत की एक छोटी सी कहानी। खिलाफत के नाम को दुनिया से खत्म करने के बाद अंग्रेजों ने पूरे अरब दुनिया में हर जगह अपने पपेट्स बिठाए, जो आज तक उसी तरह अपनी जगह पे बैठे हुए। सब्सक्राइब। व्यूअर्स, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में जानना लाजिम है। और इस वीडियो में मुख्तलिफ खिलाफात में होने वाली फतूहात और तब्दीलियाँ बहुत वजाहत के साथ बयान कर दी गई हैं और मुझे ज़ाती तौर पर इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी मालूमात जानने का मौका मिला, जिनके बारे में पहले से इतनी डिटेल में मैं नहीं जानती थी। और जिस तरह के जैसा कि बताया गया कि 1300 सन हिजरी से जो खिलाफात दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह चल रही थी, आज से 100 साल पहले उन्हें ख़त्म कर दिया गया। और किस तरह, किस वजह से, इसकी क्या वजूहात थी, वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताया गया। और इसके साथ ही अब हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।